شکار پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن. محترم حضرات، ایک دیوبندی ہے جس کا نام عمران ملک ناسک مہاراشٹر کا رہنے والا ہے. نور حسن بھائی سے شرک اور بدعت پہ بات ہو چکی ہے. جب اس کا نمبر یوٹیوب پہ گیا تو ہمارے بھی کچھ بھائی اس کے پاس کال کیا اور اس کے بھی چاہنے والے نے اس کے پاس کال کیا. جب پھر سے وہ بوکھلا گیا، پھر سے نور حسن بھائی سے بات کرنے کو مچل گیا. جب دوبارہ بات ہوئی تو جب اس کے گھر سے پوری دلیل دیا گیا تو وہ پھر سے بوکھلا گیا اور گالی گلوچ کرنے لگا. آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے. اگر فرسٹ والی آڈیو آپ حضرات نہیں دیکھا ہے تو میں اس پہ لوگو لگا دے رہا ہوں، آپ لوگ یہ لوگو دیکھ کر اس آڈیو کو سن سکتے ہیں. آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. ہلو. ہاں میں گھر میں تھا اس لیے فون برابر سے بات نہیں کر پایا. ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہوں. جی بولیے، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں اور آپ نے مجھے کہا واٹس ایپ پہ. میں نے آپ کا اتنی شدت سے انتظار کیا ہے کہ شاید ہی کسی کا کیا ہو. اچھا. ہاں اس دن آپ مجھ سے بات کر رہے تھے شیر کوٹ بدعات کے معاملے میں. میرا نام عمران ملک ہے، میں انڈیا سے ہوں. عمران ملک انڈیا سے. میری ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈالی تھی. اچھا، آپ کا مسئلہ؟ بہت لوگوں کا میرے پاس فون آیا، بہت لوگوں نے مجھ کو فون کیا. اچھا. اور کہا کہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ دیا وہ دیا. ایسے تو میں تعریف کا وہ نہیں ہوں محتاج، کوئی بات نہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ریکارڈنگ ڈالے تھے پہلے ڈالنے سے پہلے اس کو سن تو لیتے ہیں کہ اس میں بولا کیا ہوں. جو بھی بولا ہے عوام کو فیصلہ کرنا ہے نا. نہیں عوام کیسے فیصلہ کرے گی؟ عوام کو فیصلہ ریکارڈنگ جب ہو رہی ہے مناظرہ اور جب اس کو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں دیکھیے تو عوام کی اصلاح ہونا چاہیے. جی آپ نے اچھا بولا، اصلاح ہونا چاہیے. جیت ہار کا مطلب نہیں ہے مناظرہ کرنا، جیت ہار کی بات نہیں ہوتی ہے. مناظرہ کا مطلب اصلاح ہونا چاہیے. اب تم یوٹیوب ڈال رہے ہو آپ کے چینل پر کہ عمران دیوبندی ہیں اور سنیوں کو کہتا ہے شرک بدعت سے یعنی بات کرتا ہے، سنیوں کو برا کہتا ہے. اس طرح کہہ کے میں نے دیکھا آپ کے یوٹیوب چینل پر، میرا آڈیو پورا سنا میں. اتنے فون آئے ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہونا چاہیے آپ کو. نہیں خوشی کی بات نہیں ہے. دراصل میں خود چاہتا نہیں ہوں کہ یہ سب یوٹیوب پر میری آڈیو جائیں اور لوگ مجھ کو فون کرے اور بولے کہ آپ نے اچھا جواب دیا، یہ دیا. گھر میں رہتا ہوں، مجھ کو گھر میں ڈانٹتے ہیں یہ سب کہ کیا لگایا ہوا ہے. آپ غلطی پر ہوتا نا ڈانٹتے ہیں آپ کو. نہیں غلطی پر نہیں، کہنے کا مطلب کہ ایک منٹ، گھر والے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا کام ہے یا علماء کا کام ہے. دیکھیے آپ کافی ٹائم سے بول رہے ہیں، مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. جی جی جی. دیکھیے آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں نے بڑا جو ہے میسج کیا، فون کیا، کمنٹ کیا ہے نا. جی جی. تو آپ کے حق میں آپ کے جماعت کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ بہت اچھا بولا ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے، تو آپ اچھا بولے یا برا بولے، یا میں اچھا بولا یا برا بولا، یہ فیصلہ مجھے اور آپ دونوں کو نہیں کرنا ہے. یہ فیصلہ عوام اہل سنت کو کرنا ہے، تمام عوام کو کرنا ہے. آپ نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. بے شک شرک ہے نا. جی. تو آپ نے ایک آیت بھی پڑھی تھی، معلوم ہے آیت کون سی پڑھی تھی آپ نے؟ جی پڑھا تھا میں. جی. تو اس آیت کے تحت آپ نے کہا کہ جیسے کوئی بندہ حاضر ہے، زندہ ہے، میرے سامنے ہے، اگر میں اس سے مدد مانگوں تو یہ شرک نہیں ہے. نہیں مدد کس طرح کی بتایا تھا میں؟ سنیے نا عمران یہ تو صاحب، واضح کر دو مدد کس طرح کی. سنیے نا. اس میں تو واضح مطلق آیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بے شک تیری ہی مدد چاہتے ہیں. وہاں تو ایک منٹ وہاں تو لکھا نہیں ہے نا کہ زندوں سے مدد مانگو. ایسے بولو گے تو میں بات نہیں کروں گا، کال کٹ کر دوں گا. بولیے بولیے، پھر میری بات سنو گے نا بولنے کے بعد. میری تو عادت ہی وہی ہے. جی جی بولیے پھر آپ. قرآن پاک کی اس آیت سے آپ نے یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ یہاں پر زندوں سے مانگنا جائز ہے، درست ہے، زندوں سے مانگنا شرک نہیں، مگر جو اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں ان لوگوں سے مانگنا شرک ہے، یا جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ان سے مانگنا شرک ہے.
आपने ये भी सब साबित नहीं किया, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के आपको सुनाई कि नहीं सुनाई कि हाँ अल्लाह ताला भी मदद करता है, ठीक है, किसकी? मोमिनों की। और अल्लाह के हो जाए तो आप बोल देने के हो गया मुकम्मल। अल्लाह के रसूल भी मदद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मदद करते हैं, जो नेक मोमिन है वो भी मदद करते हैं, मोमिनों की मदद पर मोमिन है, कुरान कहता है, कुरान का फरमान है। मगर आपने कहीं से भी ये साबित नहीं किया कि यहां से इस आयत से मुराद ये है कि जिंदों से मांगना दुरुस्त है, जायज है, यहां शिरक नहीं है, मगर बादे विसाल यानी विसाल होने के बाद, यानी फौत होने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अगर उनसे मदद मांगी जाए तो वो शिरक हो जाएगा, ठीक है, वहां तो मुतलक इनकार है। मगर देवबंद के मौलवी मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंच जाते हैं उठ के कब्र से। मैंने जब यह हवाला आपको दिया तो आप बौखला गए, आप सुन ही नहीं पाए मेरी बात को। नहीं गया मैं, दरअसल बात यह है कि वो जो इबारत आप दे रहे हैं, देखिए आपने गड़बड़ है। आप हमारे घर का हवाला हमारी किताब के हम ज्यादा दावेदार हैं, हम ज्यादा हक पर है हमारी किताबों पर, तो आपकी जबान से थोड़ी वो कबूल की जाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए सुनिए पहले मेरी बात को, देखिए सुनिए मेरी बात को। मैंने आपकी बात बहुत सुकून से सुनी, अब दो बात सिर्फ मेरी सुन लीजिए, फिर जिंदगी भर आप बोलते रहना, मैं सुनूंगा कॉल पर। सुनी, सबसे पहली बात ये कि आपने मुझको अभी एक झूठ बोला कि मैंने आपको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर बताई। आपने मुझको कितनी आयतें पढ़ी जरा ये बता दिया? अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई एक आयत पढ़ी? आपने रिकॉर्डिंग सुनी पूरी? वो भी वो शिर्क के हिसाब से नहीं है, वो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, आपने ये पढ़ा था। हाँ तो कुरान की आयत नहीं है, एक आयत पढ़ी आपने, कहा कुरान की आयतें पढ़ करके बताई। अच्छा एक मिनट, तो तुम्हें मैंने और दूसरी आयतें नहीं सुनाई या फिर आपने बोलने का मौका नहीं दिया वगैरह? हो सकता है कि आपको ना सुनाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पर बहुत बहस हुई है। कहा कि तुमने मुझको आयतें अच्छा सुनाई, तो आपने एक आयत पढ़ी जो शिर्क के मुतालिक नहीं था, सुनिए, तो फिर आपने कैसे बोला कि आपने मुझको आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई? सुनो जी, अगर मैंने तुम्हें नहीं सुनाई है तो फिर तुम्हारे दूसरे को सुनाई है। उसी हेर फेर में, सुनिए एक मिनट, उसी हेर फेर में या उसी दिन मैंने इस चीज पर किसी दूसरे से भी बात की है। अच्छा चलो, अल्लाह बेहतर जाने मैंने तुम्हें सुनाई या तुम्हारे दूसरे को सुनाई, मुझे इतना याद भी नहीं रहता है कि कौन है क्या नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, सुनो, आपने किसी दूसरे को सुनाई, चलो आप वो आयतें जरा मुझको सुना दो, ठीक है? अच्छा तो तौबा कर लेंगे अभी? नहीं, तौबा करने की नहीं करने की बात दो नंबर की। ना ऐसे मैं बातें नहीं करता हूँ, ऐसे थोड़ी मेहनत करता हूँ। आपने जो पहले हाँ ना में जवाब इबारत आपने पेश की वो एक गड़बड़ है इबारत में, अगर मैं इबारत साबित कर दूं तो आप तौबा कर लोगे? कौन सी गड़बड़? रहमतुल्लाह को अपना गाली दोगे और ना कभी कुछ कहोगे किसी को, तो बंदी हो जाएंगे आप, पहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो जाएंगे आप। कौन सी इबारत? कौन सी इबारत? उसको साबित कर दूं कि आप इबारत का जो मतलब समझ रहे हैं उसका वो मतलब नहीं है और इबारत में गड़बड़ है। कौन सी? अगर मैं सही के साथ साबित कर दूं तो वो इबारत जो आप लाए थे, कौन सी? वो थाने रहमतुल्लाह कबर पर एक आता है और रोटी जो भी आपने बात की थी। अच्छा हाँ, आप यकीन के साथ कहेंगे, आप मान लेंगे उस थानवी रहमतुल्लाह गलत बोलना, भोगना बंद करेंगे उनके ऊपर और आदोबंदी हो जाएंगे। अच्छा मैंने क्या बताया था जरा उसमें जरा थोड़ा सा बोल के बताना जरा। ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन कम से कम आपने इतना बताया। तो सही साबित कैसे करेंगे जब तुम्हें ज्यादा याद नहीं, तो सही साबित कैसे करेंगे? अब आपने जो लाया है वो तो हमारे जहन में कभी है ही नहीं, आपने क्या लाया? मैंने तो तुमको एक मिनट उसके बाद जो सुनो तो तुमने अलग तरह से वो इबारत बताइए, पता है आप? तुम कह रहे थे मैं सुनूंगा, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जी, मैंने हवाले तुमको ही भेजे थे ना, तुमने मांगे थे ना मुझसे हवाले, कि हवाले भेजो। आपने भेजे नहीं थे, आपने भेजा कहाँ व्हाट्सएप पे? आपने जवाब भी नहीं दिया। जी, मैंने हवाले भेजे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने हवाले नहीं भेजे हैं? हवाले? अरे यार मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ बार बार के भाई नूर हसन भाई, आप तो मुझसे बात कर लो अभी लो तुमने जिस व्हाट्सएप पे, एक मिनट, तुमने जिस व्हाट्सएप पे मुझसे कहा है ना कि तुम मुझे कॉल करो, ठीक है, उसी पे भेजता हूँ। आप भेजोगे अभी? अल्लाह ताला की लानत हो झूठों पर, कहो आमीन। अरे यार कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन। पहले आप सोच लो जरा, क्या बोल रहे हैं? झूठ आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँ आपको नहीं बोल करके आप भेजिए, और अगर मैं कहूँ कि नहीं भेजा हूँ, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं? आप क्या भेजे उस पर? स्टिकर, खराब शराब स्टिकर भेजे और कुछ काम की भेजे ही नहीं है। दोबारा भेज दूं? नहीं देखने मिले तुम्हें तो दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है? तो अब आप नहीं, और इसको पढ़कर, ठीक है, इसको पढ़कर सही से तुम साबित कर दो, ठीक है? साबित कर दूंगा तो अच्छा सुनो, तुमसे मेरी बात हुई थी कभी? एक दफा हुई है जिंदगी में, एक दफा। कितने दिन हो गए?
2-3 दिन हुए अब। 2-3 दिन हो गए। जी अच्छा, 3 दिन कम से कम हुए। खुदा की कसम खा के बोलते हो कि तुम्ही से मेरी बात हुई है? अरे हाँ ना यार, मैं नहीं बात किया ना कसम यार। खा के बोलो कि हाँ खुदा की कसम मुझसे ही बात हुई क्यों थी, बोलो। इतनी सी बात में कसम कहाँ क्यों खाऊं मैं? देवबंदी झूठ बहुत बोलते हैं ना, कोई और भेज देता है फिर। तुम उस लायक थोड़ी हो कि तुम्हारे सामने हम अल्लाह खाओ ना कसम। कसम खाए आप। बिल्कुल कसम खाओगे, क्योंकि चिल्ले के पिल्ले जब एक हार जाता है तो दूसरे को भेजता है और कहता है कि तुमसे मेरी इस पर बात हुई थी, उस पर बात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। मैं झूठ बसात नहीं करता। तो मैंने तो हवाला भेजा था उस बंदे को जिससे मेरी बात हुई। तुम कह रहे हो कि मैंने मेरे पास भेजा ही नहीं। तो जब तुम्हारे पास तुमसे अगर मेरी बात हुई है तो खाओ खुदा की कसम कि हाँ मुझसे तुम्हारी बात हुई है, खाओ खुदा की कसम। मैं रब काबा की कसम खा के कहता हूँ 3 या 4 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई है और जो आपने रिकॉर्डिंग डाली इमरान मलिक के नाम से वो मेरी है। बस खुश, और आपने मुझको अभी तक कुछ भेजा नहीं है। अगर अभी भेज दिया तो भेज दिया होगा, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं भेजा। अभी कॉल लगाने तक आपने कुछ नहीं भेजा, बल्कि मैंने आपको मैसेज किया कि भाई मेरा कॉल उठाओ, आपको कॉल नहीं लग रहा है, आप मुझको कॉल लगाओ। कल से बोल रहा हूँ आपको, तो आपने कहा कि भाई आपका मतलब बताएं, आप हो कौन। फिर आपने 2 बंदी का स्टिकर भेजा वहां पे, इतना ही भेजा। आपका नंबर बोलिए जरा, आपका नंबर क्या है लास्ट में? अच्छा मिल गया। ये 627 है ना? पता नहीं, मेरा नया नंबर है, मुझको खुद नहीं पता है। अरे यार फिर मैं कैसे भेजूंगा? अच्छा लो जिसका भी होगा, मुझे ख्याल है कि यही। एक मिनट, वो अभी तुमको मैं एक नंबर से व्हाट्सएप किया हूँ यार, सुनो मेरी बात को। एक नंबर बकवास जरा कम करा करो, ठीक है? अभी भेजा हूँ, ये भेजा हूँ। टावर बना हुआ है, टावर बना हुआ है, टावर बना हुआ है। अरे यार ये तो किसी और के पास चला गया। आपकी डीपी है ना, मेरा नहीं है। मेरा टावर नहीं बना है, मेरा पे जो है ना, देखिए डीपी पर एक गोलियां ऐसे लिया हुआ हाथ में, वो मेरी डीपी है। मैंने आपको मैसेज किया है अभी मेरे दूसरे वाले व्हाट्सएप से। खैर कोई बात नहीं है। क्या बना हुआ है? एक हाथ में गोली लिया हुआ है और लिखा हुआ कि अल्लाह जब भी मौत देना ईमान की हालत में देना, से लिखा हुआ है। एक मिनट, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आपने मुझको कुछ भी नहीं भेजा। नंबर इमरान मलिक है ना? जी 586 है लास्ट में। 786। अरे 586 है यार। हाँ बराबर कर रहे हो। जी अच्छा हाँ ये है, ठीक है। बताया मुझको कुछ भेजा है? एक मिनट, अभी तो आप कह रहे हाँ ठीक है यही है, आमीन कहो, ये कहो, वो कहो। ठीक है, रुको बात एक मिनट। तो आप भेज रहे हो ना? अरे सुनो ना, अरे सुनो ना यार, अब जरा ये हवाले पढ़ो, सवाने कासमी का हवाला पढ़ो। इसमें मदद मांगी जा रही है। देवबंदियों के यहाँ मदद मांगना जायज है, तुम कह रहे हो मदद मांगना शिर्क है। नहीं, इसको लड़ाई बोलते हैं, ऐसे बात होती है, इसको लड़ाई बोलते हैं, बातचीत नहीं कहते, गुफ्तगू नहीं कहते। आपने मैं देखा हूँ आप किस तरह लोगों से बात करते हैं, समझे? अच्छा दूसरा हवाला इमदादुल मुश्ताक जी। तीसरा हवाला कुल्लियात इमदादिया। अच्छा चलो आप सेंड करो, सब मैं देख लूंगा। लेकिन अरे की बात है, बड़ी अजीब ताज्जुब की बात है। मुझे तुम एक मिनट ना, चुपिए ना। हाँ जी। तुम्हारा तिरमिज़ी शरीफ पर ईमान व अकीदा है या नहीं? बेशक है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के मददगार हैं। अच्छा जी, आइए व्हाट्सएप में आइए, हाँ वो मतलब नहीं होता है। अच्छा क्या मतलब होता है? मतलब हदीस के जो मंशा होता है, मुतवादी होता है। अच्छा तुम अच्छा खुल्लम खुल्ला बता दो कि बताऊंगा तुम तौबा करो। विशाल शुदा लोगों से जो अल्लाह के वली हैं उनसे मदद तलब करना, मदद मांगना, या उनकी मजार शरीफ पे जाके अल्लाह से दुआ करना, उनसे मदद तलब करना, ये जायज है, नाजायज है, दुरुस्त है, नादुरुस्त है, शिर्क है, बिदअत है, हराम है? शरीफ पर सुन लो पहले, मजार शरीफ पर जाना कोई हर्ज की बात नहीं है, मोहब्बत के खातिर जा सकते हैं। दुआ करना कोई हर्ज नहीं है। उनसे मांगना, उनसे क्या किसी से भी मांगना, अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना सब हराम है, सब नाजायज है, फालतू फोकट का हमें अपनी तरफ से बनाया हुआ है, समझ गए आप? अच्छा। जैसे ईसा और मूसा की तरफ लोग माबूद बना लिया करते थे। अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर देते गए कि यार मत बनाओ इस तरह ईसा और मूसा की तरह, सिर्फ मुझको पुकारो। तो आखिरी नबी आकर मुकम्मल हुआ, दिन सिलसिला नबूवत का खत्म हुआ। अच्छा जमात में गए हो कभी? जी नहीं गया हूँ। नहीं गए हो? फजाइल अमाल का हवाला सुन लो जरा। नहीं गए हो तो चले जाना, ठीक है? और फजाइल अमाल खोल के देख लेना। सुनो ना सफा नंबर, अरे सुनो ना, जब तुमने कह दिया ऐसा करो, कॉल काट करो। तुम्हारे जैसे हरामियों से मैं बात नहीं करता जब हवाला कोई नहीं सुनता। हराम की औलाद तुम हो सालों, बिना नस्ल के कैसे दरिंदे, किसी नस्ल से पैदा हुए इंसान, तुम लोग कुरान का गलत बदल करते, शर्म नहीं आती आपको?
शर्म तो तुझे आना चाहिए तुम्हारी शैतान। बरेलियत में किसी ने ऐसी माँ ने किसी को जना है जो जिगरा लेकर के पैदा हुआ है। कुरान हदीस से बात करें, देख, थानवी को छोड़ करके तेरा थानवी हरामी वाला दूसरा यहाँ फिर मुशरिक हो गया। तेरा थानवी कहता है कि अगर बरेलियत में कोई ऐसी माँ है जो जनी है, ऐसी मैं हूँ, मुझे मेरी माँ ने जना है। पैदा हुआ है। ला तेरी जमात का कोई हरामी मुफ्ती पैदा हुआ हो तो। ऐसे लोगों को मैं चुन चुन कर शिकार करता हूँ। तेरे पास कुछ है नहीं सिवाय ये बीच में अकाबिरीन के फतवे ला करके टांग अड़ाने को, वो भी गलत सलत इबारतें लाकर पेश कर रहा है। तो गाली बकना उन्हें, तेरे मुफ्तियों को सालों ने उन्होंने क्यों लिखा है? तुम्हें क्यों शिरक में मुफ्ती ला करके चले गए? किया है कि अगर माँ ने ऐसा जना है जिगरा लेकर पैदा हुआ पूरी बरेली, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो। अबे तू क्या है? मैं हूँ तो। भी नहीं है, हदीस भी नहीं है तू। अबे तू अपने अकायद पर कहाँ टिका रहा है? अगर मैं तुझको मैं तो तेरा शिरक तेरे घर से साबित कर रहा हूँ। लगा फतवा शिरक का, करेगा तू? जिसका आईना ही सुन, हो, जिसका आईना लगाना शिरक का फतवा। जंग लगे हो तो वो क्या मेरे देख रहे हैं जनाब हजरात, इसको मैंने हवाले भी भेज दिए हैं और पहले भी मैंने किसी को हवाले भेजे थे। इसने फिर से नए व्हाट्सएप से जो है मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया। हमने जो है इन देव के बंदरों की हकीकत ही ये है कि इनके मुंह पे जब तमाचा मार दिया जाए तो चमार वाली हालत हो जाती है कि अबके समार, अबके समार, अबके समार। 1000 बार तमाचा मारो, इनके चाट मारो, झाग से मुंह लाल कर दो, फिर भी कहेंगे कि आपसे मार।